میری طرف سے تعبیر ٹی وی کے معزز ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک عرب ریاست قطر کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیران کن معلومات سے آگاہ کروں گا، جس میں قطر کی تاریخ، دور جدید کی ترقی اور قطر میں ہونے والے منفرد کام شامل ہیں۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے التماس ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی پریس کر دیں، تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، قطر مغربی ایشیا میں موجود ایک خود مختار اسلامی ریاست ہونے کا درجہ رکھتا ہے۔ قطر عرب جزیرے کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ قطر ایک منفرد محل وقوع کا حامل ملک ہے۔ اس کے 3 اطراف میں پانی اور ایک سمت میں سعودی عرب اور UAE کا بارڈر لگتا ہے۔ قطر کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ قطر کو ارب پتیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قطر دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی غریب آدمی نہیں رہتا۔ قطری لوگوں کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی 1,40,00,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ قطر ایک امیر ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر آ کر کام کرنے والے مزدوروں کو دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں انتہائی پرکشش تنخواہیں دیتا ہے۔ قطر 11,581 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں 158ویں نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 26,94,849 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں 142ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ دوحہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ قطر کا پرچم 2 رنگوں میرون اور سفید رنگ پر مشتمل ہے، جسے 1971 میں برطانیہ سے آزادی کے فوراً بعد اپنایا گیا۔ قطر پاکستان سے 1867 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اگر آپ پاکستان سے قطر میں کام کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بآسانی اس کا ویزا مل سکتا ہے، اور آپ قطر میں تعمیراتی شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں کے لیے 30 دن کا آزاد سیاحتی ویزا بھی دستیاب ہے، لیکن پاکستان سے قطر جانے والوں کے پاس پولیو کے خلاف ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ قطر کی کرنسی کو قطری ریال کہا جاتا ہے۔ ایک قطری ریال پاکستانی 38.69 روپے کے برابر ہے۔ قطر کی کل GDP 357.388 بلین $، ہے، جو دنیا میں 51ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ 2016 میں قطر نے تیسری بار دنیا کے امیر ترین ملک ہونے کا اعزاز برقرار رکھا۔ قطر میں کسی بھی چیز پر کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ انسانی صحت کے لیے مضر اشیاء پر ٹیکس لگایا جائے گا، جن میں فاسٹ فوڈ، انرجی ڈرنکس اور تمباکو کی مصنوعات شامل ہیں۔ قطر کا شمار دنیا کے 10 سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ تیل اور گیس کی بدولت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا ملک ہے، لیکن قطر میں تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ مچھلی پکڑنا اور سمندر سے موتی نکال کر بیچنے پر منحصر تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق لاکھوں روپے کی آمدنی صرف موتیوں کی فروخت سے حاصل کی جاتی تھی، لیکن جاپان کی طرف سے متعارف کروائے گئے موتیوں کی وجہ سے قطر کے موتیوں کی ویلیو اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ سیاحت کا شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قطر کے سیاحتی شعبے نے قطر کی معیشت میں اپنا لازوال کردار ادا کیا ہے۔ یہاں کے تفریحی مقامات ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ قطر کا الادین کنگڈم، جسے انٹرٹینمنٹ سٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، سیاحوں کی بے پناہ دلچسپی کا مرکز ہے، جبکہ دیگر مشہور تفریحی مقامات میں مشرب میوزیم، دوحہ کورنیشی پارک اور سوک مارکیٹ آنے والے سیاحوں کی بھرپور توجہ کا مرکز ہے۔ 2016 میں قطری حکومت کی طرف سے شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر سال 40 لاکھ کے قریب سیاح قطر کا رخ کرتے ہیں۔ قطر کے ہوٹلز اور اپارٹمنٹس کا شمار دنیا کے دیگر لگژری اور مہنگے ہوٹلز میں ہوتا ہے۔
यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेने के लिए आपको एक महीने के लिए पाकिस्तानी 2 लाख से ज्यादा रकम अदा करनी पड़ सकती है। कतर का पर्पल आइलैंड कुदरती फूलों, केकड़ों, परिंदों और मछलियों की सैकड़ों अक़साम से भरा है, जो आने वाले सयाहों के दिलों में कुदरत के एक अनमोल शाहकार की वाज़ेह मिसाल पेश करता है। कतर में रहायश पजीर बाशिंदों में 60% से ज़ायद बाशिंदे गैर मुल्की हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुस्तानी लोगों की है, जबकि पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली, फिलिपानी और मिस्री लोग भी बड़ी तादाद में रहायश पजीर हैं। कतर में मौजूद गैर मुल्कियों में दीगर अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की काफ़ी तादाद यहाँ पर आबाद है। इस्लाम कतर का सरकारी मज़हब है। मुल्क में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, जो वहाबी, सुन्नी और शिया फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 13.8% ईसाई, 13.8% हिंदू, 3.1% बौद्ध और 3.1% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। कतर में शरई कानून नाफिज है। मुल्क में आइनी बादशाहत राइज है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी मुल्क के 8वें और मौजूदा बादशाह हैं। शरई कानून होने की वजह से यहाँ पर हम जिन्स परस्ती की सज़ाए मौत है। मुल्क में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी ऐद है, लेकिन गैर मुल्की सयाहों की आमद की वजह से गैर मुस्लिमों को शराब और सूअर का गोश्त बरामद करने की इजाज़त दी गई है। अरबी कतर की रस्मी ज़ुबान है, जबकि मकामी तौर पर कारी अरबी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कतर में पाकिस्तान और इंडिया की तरह स्कूलों, सरकारी दफातर और कारोबारी शोबे में अंग्रेज़ी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कतर में पाकिस्तानी और इंडियन लोगों की मौजूदगी की वजह से मुल्क में इंडियन और पाकिस्तानी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। गैर मुल्की ज़ुबानों में फ़ारसी, बलोची, हिंदी, उर्दू, पश्तो, तामिल, तेलुगु, नेपाली, बंगाली, कनाडा और इंडोनेशियन ज़ुबान शामिल है। फुटबॉल कतर का सबसे मकबूल खेल है। कतर की दीगर मकबूल खेलों में हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, पैराशूट और ह्यूमन रेस जैसी खेलें शौक से खेली जाती हैं। कतर एक छोटा मुल्क होने के बावजूद 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एजाज़ भी हासिल करेगा, जिसके लिए मुल्क में 10 से ज़ायद स्टेडियम तामीर करवाए जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि फुटबॉल कतरी लोगों का शौक ही नहीं बल्कि जुनून है। कतर यूनिवर्सिटी मुल्क की सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो 1973 में कायम की गई। कतर में साइंस, सहाफ़त, कंप्यूटर, मेडिकल और दीगर दौरे हाज़र की जदीद तालीम फराहम करने वाले इदारे मौजूद हैं। कतर में तालीम की शरह 97.4% है। कतर में मुसाफिरों के आने जाने के लिए बस और रेलवे का वसी और बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ पर ड्राइविंग राइट हैंड है। कतर और बहरीन को आपस में मिलाने के लिए समंदर पर एक सड़क तामीर की जा रही है। कतरी हुकूमत का दावा है कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले इस रोड को लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हर साल 5 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों को हैंडल करता है। हमद पोर्ट कतर की अहम बंदरगाह का दर्जा रखती है, जो दोहा के जनूब में वाक़ है। इस बंदरगाह की तामीर 2010 में शुरू हुई और इसे 2017 में सरकारी तौर पर ऑपरेशनल बना दिया गया। ये बंदरगाह दीगर ममालिक के साथ LNG की एक्सचेंज के लिए वसी पैमाने पर सहूलत फराहम करती है। कतर की सकाफत में दीगर मशरकी अरब ममालिक की तरह इस्लामी सकाफत का गहरा असर है। कतर आर्ट मार्केट में दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। कतर का नेशनल म्यूजियम इस वक्त ज़ेरे तामीर है, जिसका इस साल 2019 में इफ्तिताह किया जाएगा। कतर की मुसल्लह अफवाज 11,800 अफराद पर मुश्तमिल है। कतर का दिफाई निज़ाम अमरीका और बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल है, जिसके लिए कतर अमरीका और बरतानिया को हर साल लाखों डॉलर मुआवजा अदा करता है। 2015 में कतर दुनिया का 16वां बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क था। कतर के रिवायती खानों में चावल और मटन से बनाई जाने वाली डिश मैकबूस, जिसे खास तौर पर शादी के वलीमा में मेहमानों के लिए पेश किया जाता है। इसके अलावा शहद, खजूर, प्लेटर, ऊंट का गोश्त,
मछली, कहवा और कर्क चाय बहुत ज़्यादा पसंदीदा खानों में शामिल हैं। मुल्क का सबसे बुलंद तरीन मकाम तबीबुल हमीम है जो सतह समंदर से 338 फुट बुलंद है। कतर का मौसम मोतदल और इंतहाई गर्म समझा जाता है। यहाँ पर गर्मियों में दर्जा हरारत 40 सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और कम से कम 25 सेल्सियस तक होता है। कतर में औसत उम्र 78.9 साल है। कतर सेहत पर अपनी जीडीपी का 2.2% खर्च करता है। यहाँ पर 1000 अफराद के लिए 1.96 डॉक्टर और 1.2 बेड दस्तियाब हैं। तारीखी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो आसार कदीमा से पता चलता है कि कतर में 400 साल कबले मसीह से लोग यहाँ आबाद थे। एक तारीख दान की कुतुब का मुतालिया करने से पता चला है कि यहाँ पर सबसे पहले कधारी लोग आबाद थे। इसके बाद इस खित्ते में इस्लाम की रोशनी उजागर हुई। उस्मानी सल्तनत के बादशाहों के ज़ेरे नगी रहने के बाद इस पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। 1940 में तेल की दरियाफ्त के बाद मुल्की मईशत में काफ़ी बेहतरी आई और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। 1971 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। 2005 में कतर का पहला आइन मुतारफ करवाया गया। आज कतर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में होता है। वक्त के लिहाज से कतर पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। कतर का कॉलिंग कोड +974 और डोमेन नेम .qa है। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जो यकीनन आपके लिए तफरीही और मालूमात का सबब बनी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त फारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।